بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد عرفان ایلیٹ فورس خیبر پختونخوا یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد اپنے ہی ملک کے عوام کے پیسے بچانا ہے. میری آج کی ویڈیو بہت ہی لازمی اور بہت ہی اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو بینکوں کے ذریعے تجارت کرتے ہیں، اپنے پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھجواتے ہیں، اپنے پیسے بینک اکاؤنٹس میں رکھتے ہیں. بہت ہی اہم ویڈیو ہے، لازمی دیکھتے رہیے میرے اس ویڈیو کو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان کو بتائیں کہ ایسے کرائمز بھی آج کل بینکوں کے تھرو لوگ آپ سے کروا رہے ہیں جن میں بینک کا کوئی قصور نہیں. جس شخص سے پیسے لوٹے جا رہے ہیں اس شخص کا بھی کوئی قصور نہیں، مگر پھر بھی کرائمز ہو رہے ہیں، جرم ہو رہے ہیں، مگر کسی کو کان خبر نہیں. بار بار آپ کو اس بارے میں بینک کے ذریعے آگاہ کیا جا رہا ہے، آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ خدا را اپنے پیسوں کی حفاظت کرے، اپنے اکاؤنٹس کی حفاظت کرے، اپنے ذاتی ڈاکومنٹس کی حفاظت کرے. وہ ڈاکومنٹس جو آپ کی ذاتی ملکیت ہے، جن میں آپ کا کمیشناتی کارڈ، پاسپورٹ، گھر کے کاغذات، گاڑی کے کاغذات، بینک اکاؤنٹس کے لین دین کے کاغذات، اے ٹی ایم کارڈز، کریڈٹ کارڈ اور اس طرح کے وہ تمام چیزیں جو صرف اور صرف آپ کے نام پہ ایشو ہوتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا اختیار صرف آپ لوگوں کے پاس ہے. تو میری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں تاکہ ان کو بھی اس بات سے آگاہی مل سکے کہ آج کل کرائم کرنے والے لوگوں نے عام لوگوں سے پیسے وصول کرنے کے لیے کون کون سے راستے اختیار کیے. تو دیکھتے رہیے میرے اس ویڈیو کو اور میرے ساتھ جڑے رہیے تاکہ میں آپ کو آگاہی دے سکوں. ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ ہم سب کا فرض ہے. اپنے ملک کو بچانا، اپنے ملک کی حفاظت کرنا اور اپنے ملک میں رہنے والے ہر شہری کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، نہ کہ یہ ذمہ داری صرف فورسز پر عائد ہوتی ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس ملک کو سب نے ساتھ لے کے چلنا. ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل فراڈ ہو رہے ہیں. آج صبح میرے ایک دوست نے مجھ سے ایک بات شیئر کی اور اس نے مجھے بتایا کہ HBL کے ایک نمائندے نے مجھے فون کال کی اور اس نے مجھے کہا کہ میں HBL کی طرف سے GHQ آرمی کے تھرو آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے کہیں گے اپنا HBL ڈیٹا شیئر کرتے جائیں. تو میں نے جواباً کہا کہ جناب والا آپ نے ایک ایسے فون نمبر سے کال کیا ہے جو ایک پرائیویٹ نمبر ہے، موبائل نمبر ہے، نہ کہ کسی کمپنی، نہ کہ کسی ادارے کا نمبر ہے، لہذا میں آپ سے اپنا ڈیٹا شیئر نہیں کر سکتا. وہی رد عمل جو ایک قابل، ایک ذہین اور عقل رکھنے والا شخص کہتا ہے، وہی جواب میرے اس دوست نے اس کو دیا. فون کال بند ہوئی، ٹھیک چند ہی لمحے بعد دوبارہ فون کال آتی ہے اور سیم ٹو سیم اس نمبر سے آتی ہے جو نمبر ATM کارڈ، HBL ATM کارڈ پہ درج ہوتا ہے. 11111425 11111425. سیم یہی نمبر دیکھیں میں آپ سے اسکرین پہ شیئر بھی کر رہا ہوں. یہ میرے دوست کے موبائل کا اسکرین شاٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اسکرین شاٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم ٹو سیم وہی نمبر ہے 11111425. اس فون نمبر سے اس کو کال آتی ہے اور سیم ٹو سیم اسی طرح کال آتی ہے، بتا دیں السلام علیکم میں HBL سے آپ کال کر رہا ہوں، کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک. اسی طرح سیم ٹو سیم کال آتی ہے. میں کہتے جی وعلیکم السلام، میں فلانا بات کروں. جی سر، جی آپ کے اکاؤنٹس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی جانکاری، تھوڑی سی معلومات درکار ہے. شخص نمبر دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ تو HBL کا ہی نمبر ہے، ہیلپ لائن نمبر ہے. وہ شخص بلا جھجک اپنا تمام تر ذاتی ڈیٹا اس کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. وہ اس کو بتا رہے ہیں دس مائی فل نیم، دس مائی مدر نیم، دس
माई अकाउंट नंबर, दिस माई ATM कार्ड नंबर। आपकी जानकारी के लिए अर्ज है कि ATM कार्ड नंबर के साथ साथ ATM कार्ड की पुष्ट पे जैसे ही आप ATM कार्ड को टर्न करते हैं उसके पुष्ट पे 4 हिस्सों या 3 हिस्सों वाला ये कोड होता है। अगर आप स्क्रीन के जरिए देख सके तो ये कोड होता है और इसी कोड में ऐसे ऐसे राज दफन है जो एक आम शख्स नहीं जानता। यही कोड क्रेडिट कार्ड पे भी होता है। आपका क्रेडिट कार्ड, आपका डेटा और ये कोड किसी भी शख्स को मिल जाए तो बड़ी आसानी से आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकता है। इस बात को अपने जहन में रखें, क्योंकि क्राइम करने वाले लोगों ने जहाँ तक क्राइम्स में तरक्की की है वहाँ तक उन्होंने कंप्यूटर की तालीम भी हासिल की कि कोई भी शख्स कंप्यूटराइज तौर पर क्राइम करने में महारत तब ही रख सकता है जब वो कंप्यूटर पर उर्दू करता हो। कंप्यूटराइज निज़ाम के जरिए चोरी करना, कंप्यूटराइज निज़ाम के जरिए किसी के अकाउंट को हाइड करना, किसी के पैसे को उसके अकाउंट से गायब करना, ये एक तजुर्बाकार और तरबियत याफ्ता शख्स का ही काम होता है। तो वो शख्स बड़ी महारत से आपसे आपका डेटा ले रहा होता है, लेकिन आपको समझ नहीं पड़ती। जिस तरह मेरे इस दोस्त से उन्होंने ये डेटा लिया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देखें, उसको ये कोड आया, उस शख्स ने पूछा आपको SMS मौसूल, उसने कहा बिल्कुल, उसने कहा ये कोड मुझसे शेयर करें। उसने ये कोड उससे शेयर किया। उस शख्स ने क्या किया, बड़ी महारत से मोबाइल ऐप के जरिए HBL एप्लीकेशन डाउनलोड की थी। उस एप्लीकेशन के थ्रू उसने उसमें उसका पूरा डेटा डाला और बतौर वेरिफिकेशन कि ये अकाउंट उस मुतलका शख्स ने ही बनाया है, एक SMS आता है उस शख्स को जिसके नाम पे साथी अकाउंट होता है। इस शख्स को SMS आया, उसने फोन पर पूछा आपको एक SMS मौसूल हुआ? उसने कहा हाँ बिल्कुल हुआ। उसने कहा उसमें जो कुछ लिखा है मुझसे वो शेयर करे। उसने वो पासवर्ड उसके साथ शेयर किया। उसने वहां पर लॉगिन किया। वहां पर लॉगिन करने का भी इसके पास ये वाला SMS आया। वो उस एप्लीकेशन के लॉगिन होने के बाद उससे मुख्तलिफ औकात पर ट्रांजैक्शन करता रहा, वो उससे पैसे निकलवाता रहा। इसके पास वेरिफिकेशन कोड आता रहा। बैंक ने अपनी जिम्मेदारी कबूल करता रहा, इसको वेरिफिकेशन कोड सेंड करता रहा कि आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। ये कोड है, अगर आप खुद कर रहे हैं तो ये आपका कोड है। ये कोड उस शख्स को ये कोड ट्रांसफर कर रहा था। उस शख्स ने बड़ी आसानी से इसके HBL अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए किसी दूसरे बैंक के अकाउंट में। इसका ये तफसील है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जिस बैंक अकाउंट में उसने ये पैसे ट्रांसफर किए उस अकाउंट के बारे में तफसील, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट नंबर कंप्लीट नहीं आता, लेकिन HBL के डेटा के मुताबिक उस शख्स का अकाउंट नंबर, उस शख्स का नाम, उस शख्स की वल्दियत, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसका बायोडेटा मुकम्मल तौर पर उस मुतलका ब्रांच में होगा। मगर ये नादानी किसकी? ये नादानी हमारी। ये नादानी किसकी? ये नादानी हमारी नासमझी की। ये नादानी किसकी? ये नादानी हमारी कि हम कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके बारे में मुकम्मल तौर पर जानकारी हासिल नहीं करते। अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ATM यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जानने की हमने कभी भी कोशिश नहीं की कि जिस चीज़ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस चीज़ को हमारी आसानी के लिए, हमारी ज़रूरियात के लिए बनाया गया है, उस चीज़ में खूबियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं और उनमें वो नाजुक नुक्ते क्या हैं जिसके ज़रिए कोई भी शख्स हमारे अकाउंट से पैसे निकलवा सकता है।
जब इसी सिलसिले में आज सुबह मैंने अपने दोस्त के मोबाइल नंबर से HBL हेल्पिंग लाइन पे फ़ोन की तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि जनाब वाला 11111425 नंबर जो आपने बोला है ये हमारा हेल्पिंग लाइन नंबर है, कभी भी इस नंबर से आपको कॉल नहीं आ सकती। इस बात को मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता चलूँ, 11111425 चूँकि HBL का हेल्पिंग लाइन नंबर है, इससे आपके मोबाइल आ सकते हैं क्योंकि ये आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया हेल्पिंग नंबर है। अगर हम इसी नंबर से आपको कॉल करेंगे तो ये नंबर बिजी होगा और किसी शख्स को नहीं मिलेगा, लिहाजा इस नंबर पे ऐसी कोई भी सहूलत मुयसर नहीं जिसके ज़रिए आपको फ़ोन कॉल की जा सके। कि मेहरबानी करके काइंडली किसी के साथ भी अपना ज़ाती डेटा शेयर ना करें, चाहे वो जो भी शख्स, जो भी नुमाइंदा, जो भी कंपनी का, किसी भी बैंक का नुमाइंदा बन के आपसे बात करें, किसी भी फोर्स से उसका ताल्लुक हो, काइंडली उसके साथ अपना ज़ाती डेटा शेयर ना करें। अगर ऐसी कोई फ़ोन कॉल आती है तो कतई उससे बात ना करें और ना ही उसको अपनी मालूमात दें, बल्कि फौरी तौर पर HBL हेल्पलाइन पर फ़ोन करें, या अगर किसी और बैंक का अकाउंट है या किसी और मुतल्लिका इदारे के यानी नादरा के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं, या पासपोर्ट के बारे में आपसे मालूमात हासिल कर रहे हैं, या किसी और मोबाइल सिम या किसी भी चीज़ के ज़रिए से आपसे मालूमात हासिल कर रहे हैं, तो फौरी तौर पर उस मुतल्लिका महकमे को इत्तला दें और फौरी तौर पर पुलिस को रिपोर्ट करें ताकि बर वक्त इसके खिलाफ कार्रवाई हो सके, क्योंकि ये आप ही की नादानियाँ हैं और आप ही की कम इल्मी है कि आप अपना ज़ाती डेटा किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो अपना ज़ाती डेटा अपने पास महफूज रखें, अपने पास रखें। वीडियो के बनाने का मकसद यही था कि आप लोग अपने ज़ाती डेटा को अपने हिफाजत में रखें, क्योंकि इस कंप्यूटराइज दौर में हर चीज़ बटन के दबाने से होती है। आपने यहाँ पर बटन क्लिक किया और वहाँ के पर आपके अकाउंट से लाखों हज़ारों करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र होते हैं। यही सिलसिला और यही कार्रवाई करते हैं आजकल के लोग किसी भी शख्स से धोखा से पैसे लेने के लिए। वो दौर गए, वो बातें गई जब लोग ज़बरदस्ती किसी को पकड़ कर उसके जेब से बटवा या पैसे निकलवा लेते थे। अब लोग बड़ी आसानी से, बड़ी महारत से और अपनी काबिलियत से कंप्यूटराइज सिस्टम से आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो किसी भी अनजाने शख्स, किसी भी अनजाने आदमी, किसी भी अनजाने महकमे या किसी भी अनजाने फ़ोन कॉल्स पर अपना ज़ाती डेटा शेयर मत करें। अपना ख्याल रखिए और अपने ज़ाती डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत करें। थैंक यू।